there's a point when you acknowledge कि अब नहीं होगा, ठीक है, and that's when a lot of people start applying for off-campus internships. So वो acknowledgement कब हो जाए कि But for those who don't have like a decent CPI, it is not the defining point of your interview or your shortlisting. क्योंकि IIT में जो लोग एक तो आ रहे हैं वो ज़्यादा रिजेक्शन झेले नहीं होते हैं अगर मतलब लड़कियों को हटा दें, लाइक लड़कियों से रिजेक्शन हटा दें. Hello everyone, welcome to the second season of Career Cafe, presented by YEC, the Youth Empowerment Club, and powered by CBS. So today we bring you the very first episode based on off-campus internships. And today we have Arushi Kumar, Aditya Kanaglekar, and Adi Jan. So if you want to quickly introduce you to the audience, you can. So hello everyone, I am Adi Jain. I am from Mathematics and Computing branch, and I interned at Cisco this summer. Crazy. I'm Aditya. I'm from Chemical Engineering and I interned at Trident's Data Science at Bangalore. Cool. Hello, I'm Arushi. I'm from Data Science and AI and I interned at Google this summer. Crazy. So now that you have known our guests, we'll proceed with the informative part where we'll be throwing a lot of information about how to crack off-campus internships, and they would be also sharing their experiences, that how did the internship go and how did they get the internship at the first place. So yeah, so firstly starting with how's life, guys? How are you guys doing? Still waiting for PPO. Actually. Best of luck for that. So crazy. Yes. सही है. So starting with कैसा रहा भाई, तुम लोग कैसे लगी तुम्हारी internships, क्योंकि ये this is the time when a lot of people have already been through the intern season, the third year right? So they are looking for off-campus opportunities. So this is the optimum time when we tell them कि how to get these internships. So if you would like to start and tell us how did you get your internship and how did things go? I guess मैंने तो चालू कर दिया था while on campus companies were coming through LinkedIn, company websites, Okay. and लोगों को cold message करता था कि hi I'm this I'm from this college and मेरा ये इंटरेस्ट है, CV वगैरह अटैच करके पूरा एक अच्छे से शॉर्ट स्वीट मैसेज करता था ताकि ऑफ कोर्स अट्रैक्शन बने. एंड ऐसे ही धीरे धीरे करते गया. ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है, मतलब 110 टाइम्स आप बहुत जगह अप्लाई करो, मेल्स करो. Exhaustive process. हाँ, then you get opportunities, 5-10 opportunities, interviews. So you ended up in Cisco, right? Right. Crazy. And you are from MNC. हाँ. Crazy. Congrats for that. Then talking about Aditya, so how did you get your internship and where? तो मेरा तो ऐसा था कि जुलाई के आसपास मतलब हैकेथॉन हुआ था. तो लाइक हमारे जुलाई के टाइम पे तो उस टाइम पे हैकेथॉन 2024. Yes, exactly. So hackathon हुआ, then we like came second in the hackathon. Pan IIT hackathon था. तो उसमें फिर after that they took interviews. Then September-ish में, okay, and then September-ish में लग गया. So you were the winners of the hackathon. हाँ, second आए थे, silver आए थे. Crazy. And what about you, Arushi? मतलब मेरे को तो जून में लाइक HR ने मेल भेजा था कि लाइक एक इंटरेस्ट फॉर्म की, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इंटर्न, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गिव द इंटरव्यू, ये फॉर्म भर दो. तो अदर थिंग इज अ लॉट ऑफ लाइक ऐसे SD कंपनीज जैसे गूगल हो गई या इवन Amazon इनफैक्ट, उनके जो HRs होते हैं, जो रिक्रूटिंग टीम होती है, वो एक एक्सटेंडेड टीम होती है. तो वो लोग ही टिपिकली ऐसे इंटरेस्ट फॉर्म ही फ्लोट करते हैं. जैसे Amazon भी फ्लोट करता है. तो ये उनको मोस्ट लाइकली जो ईमेल्स मिलते हैं वो दे गेट इट फ्रॉम कि वही जो प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स में तुमने पार्ट लिया है ऑफ दैट कंपनी या कोई प्रीवियस प्रोग्राम्स के पार्ट थे. So like that's the irony, guys. We are running behind companies and companies are running behind the candidates. नहीं, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स तभी Okay. your So you have to make yourself visible, रहेगा. as you were also doing the same. You were like coming into their knowledge की. मतलब like, अप्लाई करना इज हाँ, डेफिनेटली fine, इम्पोर्टेंट. अप्लाई करो, बस बैठे मत रहो. जहाँ अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है अप्लाई करो. Nice. So like now we'll be going through how to prepare for these internships, right? Because this is the time, as I already told, ki people are looking for off-campus opportunities. So like what is the procedure? You appear for an OA, then an interview. So how to prepare for these OAs? तो आई वुड से कि जस्ट जैसे ऑन कैंपस आप प्रिपेयर करते हो DSA थ्रू CP For एंड SD एवरीथिंग. roles. हाँ, फॉर Okay. SD रोल्स तो सेम प्रोसेस होता है. बस जस्ट अप्लाई करने का प्रोसेस अलग होता है. बाकी OA सेम तरीके से होते हैं. इंटरव्यूज़ होते हैं, 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़. OA तो उसमें DSA क्वेश्चंस प्लस MCQs बेस्ड Similar ऑन to जो ऑफ कैंपस हो रहा है. ऑफ On campus हो रहा है. ऑन Fine. कैंपस होता है. तो इट्स नॉट अ डिफरेंट प्रोसेस. It's not like कि तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है. हाँ. It's just like तुम्हें चैनलाइज करना है अपना एफर्ट हाँ. उधर भी. Fine. So like then resume is a big factor, right? Because resume ही डिटरमाइन करता है कि तुम सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे.
And let's talk about the competitive landscape as well. Ki jab when you are on campus applying, then it's like the IITians or us only that you're competing, right? Fair. Lesser number of people, though more competitive, but lesser number of people. But when you apply for off-campus opportunities, then the pool is greater. And then how does your IITian tag help you? How does your resume help you stand out? यार सो इसके अलग अलग मतलब इट इज़ वेरी कंपनी बेस्ड वैसे तो कि व्हाट काइंड ऑफ रोल बेस्ड टू बी ऑनेस्ट मतलब व्हाट सो ऑफ कैंपस के लिए यार दे आर वेरी फॉर लाइक मिड रेंज कंपनीज दे आर वेरी स्पेसिफिक ऑन व्हाट दे वांट एज फॉर एन ऑफ कैंपस इंटर्न तो लाइक वो इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन लाइक जो रोल है एंड जो CV है उसमें कितना कोहेरेंस है अच्छा, उस पे जाएंगे मतलब काफ़ी बार होता है फाइन फाइन, ठीक इस है, पे nice. लाइक एक पॉइंट थोड़ा अभी दिस इज समथिंग आई हैव हर्ड, मेरे को नहीं पता कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है, बट क्या होता है ऑन कैंपस में जब आ रहा है कोई इंटरव्यू लेने, दे नो कि टैलेंट पूल प्रिटी मच लाइक है राइट. ऑफ कैंपस में इवन जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है उसको भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज दे गेट अ वेराइटी, बहुत Valid, बड़ा एप्लीकेशन मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी है, बहुत डाइवर्सिटी है एप्लीकेंट पूल में. तो समवेयर आई थिंक उस प्लेस पे वही CV मैटर्स अ लॉट बिकॉज अगेन इंटरव्यूज में थोड़ा लक फैक्टर रहता है राइट कि क्वेश्चन हार्ड पूछ लिया, इजी पूछ लिया, या इंटरव्यू इज अग्रीइंग विद यू, नॉट अग्रीइंग विद यू, तुमने टॉपिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. बट समवेयर दिस इज़ वेयर आई थिंक तुम्हारा जो CV है जिसपे CV पे मेजरली तुम्हारा वही कि क्या अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं, क्या द IIT टैग एज यू सेड इन ऑफ कैंपस, आई थिंक वो थोड़ा सा इंटरव्यूअर को एक कॉन्फिडेंस देता है, सो दे आर मोर लीनियंट विद यू. फाइन. एंड ऑफ कोर्स ये भी कि कम्युनिकेट करना ज़रूरी है रेज्यूमे में जो तुमने लिखा है IT टैग वगैरह कि हाँ तुम एक्चुअली IT से हो, तुम्हारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, तुम बाकी लोगों से इन फैक्टर्स पे स्टैंड आउट करते हो, डिफरेंट हो. That matters, fine. Then like a lot of people are worried about कि उनके CV का ATS स्कोर बहुत कम आ रहा है. So does it actually matter कि तुम्हारे CV का ATS स्कोर कितना है और कैसा है? आई गेस ऑफ कैंपस में मैटर करता है क्योंकि जब बहुत लोग अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे गूगल में लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो इट डेफिनेटली कि इन सबको फिल्टर आउट करना. what format should we follow जिससे हमारा ATS स्कोर अच्छा है? मतलब अलग अलग होता है. सो देयर इज़ वन JX रेज्यूमे टेम्पलेट जो अपने सीनियर्स ने बताया था. तो यार मतलब दैट इज़ वन गुड ऑफ कैंपस CV टेम्पलेट. बट इफ़ तुमने अभी के लिए बस ऑन कैंपस CV बनाई है तो वो भी मतलब सबमिट कर सकते हो, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम. उससे भी हो जाता है. And like a lot of people have a lot of PORs, the position of responsibilities. So do they matter, especially for non-tech roles? Do they have So some नॉन टेक importance? के लिए तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लाइक एटलीस्ट वन PR. मतलब नॉन टेक रोल्स इफ यू आर एस्पायरिंग प्रोडक्ट कंसल्टिंग अलग अलग फॉर ऑफ कैंपस, देन यू नीड टू हैव वेल रिकॉग्नाइज्ड PORs. मतलब अच्छे से डिस्क्रिप्शन दो अपनी CV में. एंड देन आई मीन प्रोजेक्ट्स हो गए, लाइक यू कैन लाइक रिजेंबल और शो दैट फ्रॉम योर CV प्रोजेक्ट्स एज वेल कि तुम लोग इस क्लब या इस डोमेन में काम करते थे, तो इसमें यू हैव अ गुड एक्सपर्टीज. सो And what that about- is why you're like fit for that role. What about the tech domain? Like Do PORs matter? not इतना ज़्यादा आई फील ऐसे मतलब ऐसा कोई उनका वो नहीं, मोस्टली PORs उनका वैसा कुछ वो नहीं स्पेसिफिक होता है कि यू नो कि दे प्रेफर PR पीपल मच मोर. बट आई फील एक इंटरव्यूअर का डेफिनेटली एक पर्सनल बायस तो आ जाता है इन द सेंस इन अ गुड वे कि इफ यू हैव अ POR दे आर ऑल्सो मतलब it's like you know कि they're not just ऐसे बहुत unidimensional, they're also involved in other things. तो एक वो A minor factor, but like it minor does happen. factor but helps. मतलब वही है कि somewhere your PORs also जो basically अभी कुछ interviewers में एक HR component होता है. तो like tech interviews में होता है काफ़ी tech interviews में HR component होता है. Either it's like a third HR round, like you know last HR round types, या फिर it's की या तो ऐसे लास्ट 10-15 मिनट्स HR राउंड या स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर PORs हेल्प यू टू टॉक उस टाइम पे. मतलब मेरा स्पोर्ट्स का है तो यू नो आई कैन टॉक but the अबाउट values you inculcated by being on that position, that helps you. Exactly. Fine. इफ लास्ट राउंड में किसी को फिल्टर आउट करना है कंपनीज को, देन ऑफ कोर्स PR मैटर्स कि अच्छा कैसे फिल्टर आउट It helps you करेगा. leave a like better impact on the In interview. some rare cases there is कि यार मतलब क्लब आलम ही आ गए like अच्छा. तो वही. that is a different case. भगवान की कृपा होगी बहुत हाँ ज़्यादा. exactly. ठीक है. तो वो होता है कभी कभी होता है. अभी इंटरव्यू का भी सेम इंटरेस्ट है, ले लिया हाँ. कि चलो ठीक है. Nice. एक्चुअली हाँ, दिस इज़ अ टॉकिंग पॉइंट. कभी सेम इंटरेस्ट हो या आप डांस करते हो, कोई भी किड्स क्लब में एक्सप्रेशंस में हो या एंकरेंजा ANR में हो, कहीं भी हो, एंड इफ उसका भी सेम इंटरेस्ट था कॉलेज में, तो इट गेट्स
मतलब इट गेट्स यू टॉकिंग विद द रेजोनेंस हो जाता इंटरव्यूअर. है. फाइन फाइन. देन CGPA. सो CGPA से सबको बहुत डर लगता है. सो CGPA कितनी हो कि मैं ऑफ कैंपस बहुत कॉन्फिडेंटली जाऊँ? यार मतलब CGPA is not the defining factor for off campus, but obviously the more the merrier, मतलब it helps Valid. in True. any case. मतलब तो if you are in first or second year तो ऐसा मत सोचो कि यार कि मैं अभी CPI तो मेरे को बस अपने इंटरेस्ट पे जाना है. CPI मेंटेन कर लो, but for those who don't have like a decent CPI, it is not the defining point of your interview or your shortlisting, क्योंकि anyways the pool of applicants is so large कि CPI won't matter a lot. It is Right. different for different companies, but usually ऐसा होता है. ओके. एंड अ लॉट ऑफ पीपल अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस ये सोच के कि लाइक ऑन कैंपस तो मेरे लिए कंपनी खुली नहीं ड्यू टू ब्रांच, कि लाइक माई ब्रांच वॉजेंट अलाउड फॉर दिस कंपनी, सो लेट अस अप्लाई ऑफ कैंपस सब बराबर है. सो इज इट ट्रू, इज इट दैट कि स्किल्स को ही वो प्रायोरिटाइज करते हैं एंड लाइक ब्रांच नहीं कंसिडर करते? हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कैंपस कभी वो कंपनी ओपनिंग दे रही है टू अप्लाई फ्रॉम द वेबसाइट, तो ऑफ कोर्स अप्लाई करना चाहिए. वो लोग इतना नहीं देखते हैं. कभी Okay. ऑन कैंपस में देख रहे हैं, ऑफ कैंपस में मोस्टली कभी ओपनिंग है एंड दे आर एलिजिबल टू ओपन, मतलब दे आर एलिजिबल टू टेक पीपल फ्रॉम Okay. डिफरेंट ब्रांचेस, देन ऑफ कोर्स लेते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे. हाउ मच डू certifications matter कि like if I've taken certain courses and I've mentioned them in my resume, so do they have an impact? I I do. I think like depends on the course and तुम कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो. अभी तुम्हारा रोल अगर बहुत मतलब अगर let's say you're applying for a tech, right, maybe an AI based company or something, and you have an AI ML का certification, then definitely it will help. Okay, like so what I can take down from all this is that उनके कुछ requirements हैं, and if you fulfill this, if you're skilled enough to get into that is the only criteria that you need to have. Right. मतलब टिपिकली ना जॉब प्रोफाइल पे वो लिखी होती है कि ये लाइक यू नो नॉलेज ऑफ दिस दिस दिस, okay. तो या तो दैट थिंग इज इन योर की कोर्सेज लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, या फिर दैट थिंग का तुमने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है तो इट हेल्प्स. Okay, बट cool. डेफिनेटली वही डोंट राइट समथिंग जस्ट बिकॉज लिखा है, वरना हाँ, अच्छा. इंटरव्यू में हाँ, you can actually Exactly. get grilled on this parts कि like तुमने fake नहीं करना चाहिए. Like if you have like actually done that, then तभी. You can tailor it to some extent to the job description, but वो कि पूरा ही उसको ही ChatGPT में डाल के वो डाल दिया सेम टू सेम, ये तो मत ही करो. मतलब ठीक है. Like at least 50% authenticity होनी चाहिए उसमें. नंबर Fine. Now a very important thing is कि when people are like participating in the on-campus internships, there is a point when you acknowledge कि अब नहीं होगा, ठीक है, and that's when a lot of people start applying for off-campus internships. So वो acknowledgement कब हो जाए कि application बहुत अच्छे टाइम पे हो, like off-campus season कब होता है? When is the best time to apply for off-campus internships? I mean it depends. Like usually हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि सितंबर तक मोस्टली काफ़ी अच्छी कंपनीज आनी बंद हो गई थी. अच्छा. तो देयर वर सम ऑब्वियसली, बट मोस्टली मेजर कंपनीज अपने IIT गुवाहाटी में तो सितंबर अगस्त तक चली जाती है. तो यू कैन फोकस मतलब पहले ही कर सकते हो ऑब्वियसली, बट पहले इट वुड बी मोर सेफर टू फोकस ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स, बट लाइक फ्रॉम अगस्त सितंबर यू कैन स्टार्ट द ग्राइंड फॉर ऑफ कैंपस. Okay, like the I have a differing opinion हाँ, sure, honestly इस sure, पे. sure. मतलब द थिंग इज़ कि कुछ कंपनीज की ऑफ कैंपस जल्दी खुल जाती है, गूगल की जल्दी खुल जाती है, माइक्रोसॉफ्ट की भी बीच में जल्दी खुल गई थी. लाइक मई जून ऐसे उनके क्या बोलते हैं करियर पोर्टल पे दिखने लग जाता है. तो उससे एक मतलब एक एडवांटेज इसकी वही कि ऑफ कैंपस अप्लाई करने में तुम्हारा कुछ इशू तो नहीं होता है. लाइक तुमने क्या किया, अप्लाई किया, कॉल नहीं आया तो नहीं आया. इट्स लाइक it's either zero or more than zero. There's nothing negative. Nothing to lose. and start में तो like start जब कोई job profile खुलती है then you have more chances because तुम्हारा क्यू में पहले जा रहा है CV and openings, and they typically close it जब openings ख़त्म हो जाती है. तो I would say कि initially start कर दो. इनफैक्ट अगर इंटर्न सीजन से पहले ही तुम्हें ऑफ कैंपस कोई मिल गया, एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई प्रेप नहीं है, अभी तो DSA आधा हुआ है, यू नो, या फिर ये नहीं पढ़ा है, तो इफ़ नॉट दैट विल सर्व एज अ एक मॉक इंटरव्यू टाइप का, वैसे वे में लेके रख सकते हो. अच्छा, आई नीडेड योर And- पर्सपेक्टिव ऑन हाँ. लाइक गर्ल्स एज वेल, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो गर्ल्स के लिए जल्दी खुल जाती हैं, राइट? So- अरे मतलब बेसिकली एक लाइक स्पेसिफिक मेंटरशिप प्रोग्राम्स, स्पेसिफिक इंटर्न प्रोग्राम्स होते हैं. तो उसमें ये टिपिकली लाइक फोर्थ सेम स्टार्ट लाइक आई थिंक जनवरी के अराउंड आई थी. अच्छा. उसमें गूगल का एक स्टेप रहता है, उबर,
And Google and Uber, they offer basically you have a second year summer intern then. Okay. And उसमें typically PIO मिल ही जाता है तो for the next summer. And then फिर JPMC का रहता है. JPMC का they don't offer an internship, they offer a mentorship. Okay. तो but at the end of the mentorship, it's की written OA is waived off, just interview. Okay. So that is also a good opportunity. Nice. So like most people aren't aware about these opportunities. ठीक है, on campus तो like मेरे मेल पे आ रहा है कि what companies are coming to my campus, but off campus awareness नहीं रहता कि कौन सी कंपनी का पोर्टल कब खुला. Like you got an email from Google, but not everybody has been involved into some companies beforehand. ठीक है, so how should I reach out? मतलब मुझे पता कैसे चलेगा कि कब कोई opportunity है? Where should I search for it? I think a golden thing here is LinkedIn. मतलब LinkedIn पे सब चीज़ें आती है यार. मतलब there are LinkedIn influencers, मतलब whatever. तो ये लोग डालते रहते हैं. तो follow the relevant people on LinkedIn. It is very helpful. There are so many referral posts as well from the people working at XX companies. Okay. So LinkedIn, you should be decently active on LinkedIn. Not कि यार मतलब उसको Instagram से चला लिया पूरे दिन. Okay. But yeah, मतलब 10, 15, 20 minutes a day you should be keeping track on what is So what is happening? what in the world. opportunities are there. Fine. फॉलो पीपल जो ये सब पोस्ट करते हैं. अपने दोस्तों को बोल दो कि तुमको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तुम मेरे को भेज देना. एंड देन अप्लाई कर सकते हो कंपनी पे एक बार जाके क्रॉस चेक करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स रेफरल्स तो बहुत बड़ा पार्ट है इस चीज़ का. And a lot of people who do not get on-campus internships, they also look for research internships. So, do you have any information or any idea about how to get them, how to get research internships, and like when to apply for them? हाँ, सो रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए यूजुअली विंटर इंटर्न्स होते हैं. विंटर रिसर्च इंटर्न्स तो फैकल्टी डिफरेंट कॉलेज की फैकल्टीज़, IIMs, IITs, फॉरेन में भी आप यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़. यू कोल्ड मेल देम बेसिकली. एंड उसमें आप अपना एक कवर लेटर एंड रेज्यूमे एंड जस्ट अ ईमेल अबाउट कि मैं ये हूँ एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर योर रिसर्च इंटरेस्ट. मुझे आपका ये आर्टिकल पढ़ा एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड एंड यू कोल्ड ईमेल देम. तो आप करते जाओ. हैव एन एक्सेल शीट प्रिपेयर्ड कि मैंने इस कॉलेज के इंडियन प्रोफ्स को मेल कर चुका हूँ ऑलरेडी, ताकि सेम दो बार ना करते. हाँ. एंड ऑफ कोर्स एंड वो पर्सनलाइज्ड क्योंकि स्पैम में चले जाता है. अच्छा. देन यू कांट मेल अवे फर्दर. Okay. Exactly. तो ये चीज़ें करना सही नहीं आती. Keeping it creative. Right. Yeah. Fine. And Like also a thing I personalized. would like to add is यार मतलब वही है, मेल के हेडिंग्स नॉर्मल ChatGPT वाले मत डालो. हाँ. क्योंकि नहीं देखते हैं. मतलब वो तो प्रॉफ्स को बहुत मेल जाते हैं, फॉरेन प्रॉफ्स स्पेशली. सो ट्राई टू अगेन मतलब कि तुमने उनके इस रिसर्च पेपर के हिसाब से क्या क्या तुमने ऑलरेडी कर रखा है. Okay. तो समथिंग लाइक दैट इन द बॉडी. एंड देन देर आर एक्चुअली जो सीनियर्स भी तुम लोग सीनियर्स को कांटेक्ट करो कि उन्होंने प्रीवियसली इंडियन लाइक प्रॉफ्स के अंडर रिसर्च इंटर्न्स करे हुए हैं. सो यू कैन डायरेक्टली like they can connect you with the profs that yeah this is Fine. good guy. And then So firstly research the prof, then apply for the research No. internship. But So don't- also like actually काफ़ी programs भी मतलब a lot of IITs वो programs run करता है summer रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, वेयर जो लैब्स होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो एप्लीकेशन लेते हैं. तो आई इवन तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट आई रिमेंबर सीइंग ऑल ऑफ दोज ओपन अराउंड फेब और समथिंग. लाइक टिपिकली मिड मार्च तक बंद हो जाते हैं वो सब. लाइक IITs है या फिर आइसर है, IISc है या फिर ISI. तो ऑल ऑफ दीज एंड दे टिपिकली टेक prefer people from a different IIT. Okay. So Nice. एंड ऑल्सो ऐसे रुकना नहीं कभी. 10-20 ईमेल्स का ऐसे यू डोंट स्टॉप. एटलीस्ट 100-150 ईमेल्स करने पड़ते हैं टू गेट रिस्पॉन्सेज. 150 creative mails. वो तो ChatGPT से यू कैन ऑफ कोर्स Humanize करके. ऑप्टिमाइज. हाँ. Then let's talk about the channels to apply, right? On campus internship तो मैंने फॉर्म भर दिया, गूगल फॉर्म भर दिया, अप्लाई हो गया. हाउ टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स? लाइक देयर आर सर्टेन वेबसाइट और पोर्टल जो कंपनी के होते हैं. सर्टेन पीपल अप्लाई थ्रू रेफरल्स, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं. देन यू कैन अप्लाई इनटू स्मॉल स्टार्टअप्स, राइट? एंड देन द hackathons are also one way to apply for it. So do you have any views on these? और तुम्हें किस चैनल से इंटर्नशिप मिली? राइट. सो मेरे केस में ऐसा था कि आई अप्लाइड फॉर रेफरल. लिंक्डइन में रेफरल थे, मतलब एक्स एम्प्लॉयज, द करंट एम्प्लॉयज एक्चुअली वर सर्कुलेटिंग द रेफरल्स. तो यू जस्ट मैसेज देम, उनको बोलो कि आई एम दिस एंड वो जस्ट मैसेज
एंड कभी उनको अच्छा लगता है तुम्हारा CV एंड योर प्रोफाइल, ऑफ कोर्स लिंक्डइन प्रोफाइल उसके लिए काफ़ी अच्छा, यू हैव टू मेंटेन एंड दैट्स गेट एडवांटेजेस ओवर टाइम. तो वो सब करो एंड देन दे विल गिव यू रेफरल. तो डायरेक्ट एक ईमेल आएगा कि OA लिंक के लिए या फिर जब भी OA होगा उसके लिए. अनदर थिंग यू कैन डू, कंपनी के करियर वेबसाइट से यू कैन ऑलवेज अप्लाई. वो 2 अपॉर्चुनिटीज़ रहती है. नाइस. यू गाइस? सो मेरे केस में तो ऐसा था कि मैं मतलब हमारे क्लब मेल पे एक हैकाथॉन का वो आया था, कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स क्लब. हाँ. तो उसके बेसिस पे वी मेड अ टीम एंड देन वी लाइक वो हैकाथॉन हुआ एंड देन वी वेंट टू बैंगलोर फॉर द फाइनल्स एंड व्हाटएवर. ओके. सो मतलब अगेन इसमें क्लब का फ़ायदा होता है. तो टेक्निकली इट इज़ और मतलब अगर हम CNA से नहीं है तो देर आर हैकाथॉन्स ये डालते ही है. मतलब देर आर लिंक्डइन पे देख लो, देन देर आर कैगल कॉम्पिटिशन्स जिससे हायर करते इज हैं. देयर अ पर्टिकुलर टाइम जब मुझे हैकाथॉन्स में अप्लाई करना चाहिए? देखते रहो, बहुत होते हैं. अप्रैल में होते हैं, देन समर में होता है. देर लाइक हैकाथॉन्स गोइंग ऑन March, over April there, is like हाँ. the स्पेशली ऑन अनस्टॉप, राइट? अनस्टॉप पे तो Unstop बहुत पे ही देख आते हैं. सकते यस, हैं. एग्जैक्टली. Fine. सो यू कैन ट्राई गिव इट अ शॉट. आई मीन क्या ही हो जा रहा है, सीखने को ही मिलता है एट द एंड ऑफ एनी हैकाथॉन. सो मेक अ गुड टीम अगेन वही एंड मतलब क्रेजी. हाँ लेकिन अगर हो गया तो फिर तो वन मोर पॉइंट टू ऐड कि लिंक्डइन पे जब हम मैसेज करते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन सर्च फॉर IDG LMs एंड उनसे कनेक्ट कर सकते हो ताकि तुमको रेफरल वगैरह मिल जाए. तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है. अच्छा, नाइस. मतलब LinkedIn इज द गो टू सोशल मीडिया ऐप, राइट? True. सो there are some If you want telegram groups as internships. well वैसे अच्छा. मतलब telegram groups पे थोड़े like there are a lot of job listings and all. अच्छा, so उस पे से भी आता है काफ़ी बार. so there are WhatsApp telegram groups भी बने हुए हैं इसके लिए क्योंकि LinkedIn लाइक groups पायरेसी के अलावा टेलीग्राम पे ये सब भी होता है. एंड ऑल्सो तुम दूसरे अपने फ्रेंड से जो दूसरे ITs में या दूसरे कॉलेजेस में उनसे पूछ सकते हो कि तुम्हारे यहाँ जो कंपनी आई है जो अपने यहाँ नहीं आई है ऑन कैंपस, वहाँ अप्लाई कर सकते हो. बेसिकली नेटवर्किंग कर रहे हैं हम लोग थ्रू Right. LinkedIn, थ्रू Exactly, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स. exactly. सो डू यू हैव एनी ओपिनियंस अबाउट LinkedIn प्रोफाइल कैसे अच्छी करें? व्हाट थिंग्स टू ऐड? क्या चीज़ें हैं जो कैची बनाती है हमारे LinkedIn प्रोफाइल को? I think first thing is keep it updated. ओके, हाँ, नाइस. लोग बना के फर्स्ट ईयर में भूल जाते हैं हाँ. फिर कि LinkedIn भी एग्जिस्ट करता है. और अच्छा खासा फोटो डालो यार. मतलब मैंने देखा है मतलब कोई ऐसे रैंडम बीच पे वो ग्लास लेके पी रहा है कुछ. तो मतलब लिंक्डइन है यार, प्रोफेशनल photograph. टेक सम एफर्ट. मतलब कोई अच्छी फोटो डाल देना अगर है नहीं तो. एंड देन उसका बायो में अच्छे से यू मेंशन की वट एवर मतलब अगेन नॉर्मी सा बायो मत रखना बट मेंशन कॉलेज एंड अगेन ऑर्डर ऑफ थिंग्स एज वेल कि अगर तुमने कहीं कमेंट किया है तो सबसे पहले उतना सा चीज़ आता है. तो उसमें मेक श्योर कि IIT गुवाहाटी दिखे. हाँ, हाँ. सो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मतलब ध्यान रखो. एंड देन स्किल्स का पार्ट होता है लाइक वंस वन लाइक यूजर प्रोफाइल, देन स्किल्स, प्रीवियस इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, देन ऐसे सब चीज़ें डाल सकते हो. ओके, मतलब वही क्लिक बेट बनाना है अपने प्रोफाइल को. टेक्निकली यस. Okay, nice. Okay, now I have a special question for you two guys. So let me read out what I want to say. So motivation कहाँ से आया? For example, I am someone जिसका on campus में नहीं हो रहा, right? And there is a state a lot of people give up कि यार अब तो नहीं हो रहा, ठीक है? So that is the time कुछ लोग apply करते हैं, कुछ लोग simply give up, they give up, fine. So that is one thing कि how to keep ourselves motivated. The second thing is once you are already on campus, you are getting an internship, right? Then what is the motivation कि अभी off campus apply करना है? Because what I know is both of you got an on campus internship and then you applied for off campus, or like it was running parallel, right? So what is the motivation or what inspires you to apply for off campus once you're already sorted on campus? फॉर मी तो इट वॉज कि आई वॉन्टेड अ बेटर कंपनी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो मैं अप्लाई करता था. एंड इट डज नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू. तुम अप्लाई कर रहे हो तो ऑफकोर्स अप्लाई करो. एंड मोटिवेशन का है तो इट्स लाइक यू कैन लुक एट योर फ्रेंड्स जो प्ले ऑलरेडी इंटर्नशिप जिनको अच्छी मिल चुकी है. एंड यू कैन सी द फायर अराउंड द कैंपस कि सब इंटर्नशिप्स के लिए भाग रहे हैं. एंड आप अपने रूम पे बैठ के बस कुछ नहीं करोगे तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा डिमोटिवेटिंग लगता है. यू जस्ट अप्लाई चीज़ों के लिए एंड जस्ट डोंट गेट डिमोटिवेट कि तुम्हारे लग नहीं रहा. मैं पर्सनली मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, 7-8 इंटरव्यूज़ दिए थे. अच्छा. तो ऐसा नहीं कि ऑन कैंपस भी, तो ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हो जाओ. जस्ट यू लुक अराउंड योरसेल्फ कि क्या चल रहा है एंड देन गेट मोटिवेटेड. And like so now if we have to consolidate all of this and we want to make a roadmap for first year students or second year students जिनका intern season अभी नहीं आया है, they want to start preparation.
एंड देन ऑन द अदर हैंड जो अभी थर्ड ईयर भी जिनका इंटर्न सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, सो क्या रोड मैप वुड यू लाइक टू suggest them, like starting with the first year rights or the second year rights, when should they start preparing, what should they start preparing, क्योंकि initially they are not sure कि उन्हें कौन सा रोल के लिए जाना है, उन्हें क्या करियर पाथ लेना है, so at that time क्या करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, ऑब्वियसली नेटवर्किंग करनी चाहिए. फर्स्ट ईयर को तो ऐसा वही डोंट ऐसे वही फिक्सेट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को. एंड आई थिंक लाइक वही है बिकॉज वही रोल नहीं पता है, कुछ नहीं पता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट ईयर कैन फोकस ऑन CPI बिकॉज आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तो फिर यूज़ टिपिकली उतना नहीं होता है CPI का जितना फर्स्ट सेकेंड ईयर के एंड तक की CPI का यूज़ है. So that is one thing. And secondly, I think club recruitments, especially जो tech club के recruitments है, right? They are a very good way to get started into things because जितना I know is कि all of them का recruitment is कि they give a list of resources. तुम थोड़ा read करते हो, you get a flavor of that domain, and then you like that is when you get started. So that is a very good way to get exposure to 3-4 चीज़ें. and वही है कि try करो 3-4 चीज़ें, पसंद कुछ चीज़ें आएगी, कुछ नहीं पसंद आएगी, and accordingly फिर जो पसंद आएगी वो naturally you will start doing more, you will naturally start giving that more time. Valid. And like this was for tech based internship, right? जो tech की है. For non tech what should we do? Non-tech, yeah, same. Like you, firstly in the first and second year, you should Join like CNA, explore. right? Join CNA. Well, yes. You can also join DevSoc because it gives you good communicating skills. It teaches you how to talk. Yeah, exactly. और बाकी वो तो बोलने ही नहीं आता. Yeah, but so again, join clubs because see, it is like the club people, like it is very they lay it down for you basically. So तुम लोग को प्रोजेक्ट्स करने होंगे, मतलब हैकेथॉन्स करने होंगे, कॉम्पिटिशन्स करने होंगे, केस कॉम्पिटिशन्स करने होंगे, तो सब क्लब थ्रू आ जाता है. तुम लोग को बस करना है उसको. Okay. तो वो पार्ट होता है कि ढूंढने का, एंड देन क्या पढ़ूं Initial क्या push नहीं. मिल जाता है already. Exactly. Ambience And आप then लोग कर again, रहे हैं. yeah, like the peer groups, you meet a lot of good and talented people. So Valid. try clubs, and then obviously you can try doing courses online अगर तुम लोग को if you feel कि तुम लोग को ये domain अच्छा लग रहा है, so you can try doing courses. Typically don't do paid courses, मतलब free courses पे सब मिल जाता है, YouTube पे तो सभी मिल जाता है आजकल. So that is one thing. And मतलब try like applying for, there are some on LinkedIn as well. There are some companies that open for first and second year rights of IITs. So ये भी देखते रहो, मतलब Attentive रहना है हमें. Exactly. हाँ. Yeah. And like you talked about paid courses, तो मुझे याद आया कि there are a lot of scams जो होते हैं internship से related. I remember when we were in our first years, there was something that came कि pay us 1700 rupees, we'll give you an internship. So how to identify or how to make sure कि authentic है जहाँ मैं apply कर रहा हूँ. कहीं भी अगर पे करना पड़ रहा है upfront तो मत करो. That is- Forwarded, Okay. ऐसे like forwarded WhatsApp messages तो I think it's like don't even click on the link वाली okay. चीज़. Don't Paid- believe on WhatsApp. हाँ, कुछ भी. and I think most courses तो मेरे जैसे Coursera है, Udemy वगैरह पे like जो ऐसे you know एक in the market sites Brand है, है, हाँ. like yeah exactly, उस पे I think you get most of the women for like Coursera पे तो financial aid apply करके ऐसे ही हाँ, मिल हाँ, जाता हाँ. है. कितनी झूठ बातें लिखते हैं उस पर. एंड्रू एनजी का सब लोग भाई बहुत खुद को गरीब दिखा के ले लेते पर हैं. लिखना चाहिए. फ्री कोर्स मिल लिखना रहा है तो लिखना चाहिए, चाहिए. why would you exactly, Nice. but हाँ, so and YouTube also has a lot of material, so नहीं, a lot of people approach you, मतलब तुम्हें दिख जाएंगे उनके messages कि we are a startup, we are recruiting. तो how to ensure कि वो authentic है या फिर सही है उनका. आई गेस कभी स्टार्टअप्स वगैरह हैं तो लिंक्डइन पे उनके फाउंडर्स को यू कैन फाइंड ऑलवेज. उनकी वेबसाइट्स भी होती है, तो वो सब चीज़ से अब यू कैन वेरीफाई कि हाँ इट्स लेजिट और नॉट. उनके फाउंडर्स कौन है. हाँ, फाउंडर्स का बैकग्राउंड सेकंड. So in this entire process of applying for off-campus internships, seniors का कितना रोल है? Like तुम्हें senior से कितनी guidance कहाँ पे मिल सकती है? और like, Seniors तुम लोग से- के cases में कुछ था उनका importance या रोल? Yeah, in my case मतलब हमारे लाइक सबके केस में होता है कि यार CV बिल्डिंग में हेल्प करते हैं सीनियर्स कि मतलब व्हाट इज एक्चुअली रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री, तुम लोग क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो, तो उसमें CV के बेसिस में होता है. देन ऑब्वियसली अदर मेंटल सपोर्ट एज वेल समटाइम्स कि यार मतलब अगर नहीं लग रही है ऑन कैंपस, इंटरव्यूज जाके दे रहे हो बट देन मतलब नहीं होता है, तो दिस विल हैपन, बट दे गिव यू गुड अश्योरेंस कि नहीं तुम्हारा लगेगा. Okay. एंड
like pre-interview prep as well. So like mock interviews. exactly, like reach out to your seniors on what like XX company had asked in their way or their interviews, so that you have better knowledge and background on while going to the OA or interview. Like adding to this, even at the start जब तुम intern prep start कर रहे हो right, बहुत ऐसे overwhelming लगता है कि हाँ भाई DSE भी करना है, इतना ज़्यादा बचा हुआ है, या oops करना है, projects करना है. So I think they help you build a structured roadmap कि नहीं पहला महीना सिर्फ इस पे focus करो या last 15 days ये करना, and तो they'll help you break it down in smaller pieces. And secondly, mock interviews तो Valid. So in this entire journey that you guys had, you got an off-campus internship. So what were the challenges, if you could identify some, कि these things are कि ये obstacles हैं, क्योंकि off-campus वो होता है ना, पता नहीं है क्या होने वाला है. True. So if you could consolidate some Well, one of the problems is DSA. But that is like in general a very important thing that यार कर लो, मतलब प्रॉब्लम तो है. हाँ प्रॉब्लम तो है बट करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज व्हाई वेयर कंपनीज see the problem solving things. Specific to like off campus problems तो as such मतलब वही होती है कि यार तुम लोग इंटरव्यू निकालो. इंटरव्यू शुड लाइक काफ़ी ग्रिल करते हैं इंटरव्यूज में तो, क्योंकि मतलब दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे टू मतलब इतने सारे पूल में से तुम लोग को ले रहे हैं तो दे विल लाइक ग्रिल, तो उसके लिए तुम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा बहुत अच्छे से. फाइन. एंड बाकी तो एक और होती है कि नॉट ऑल ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए यूल बी एलिजिबल, बिकॉज फॉर एग्जांपल अमेजोन 6 month इंटर्न ही लेती है ऑफ कैंपस, 2 month लेती भी नहीं. तो इवन दो दे फ्लोट आउट ऐसे इंटरेस्ट फॉर्म्स करियर पोर्टल पे भी तो इट्स लाइक कि देयर नथिंग यू कैन डू देयर बिकॉज वो तो कॉलेज अलाउ नहीं करेगा. एंड सेकेंडली वही है कि ईमेल चेक करते रहो, HR क्या अपडेट्स दे रहे हैं, यू हैव पीछे पढ़ना पड़ता है उनके, बिकॉज वो थोड़ी तुम्हें कॉल करके बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है तुम्हारा अगला इंटरव्यू है. एंड डोंट गेट एग्जॉस्टेड बाय दीज थिंग्स कि ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जो भी चल रहा है, जस्ट अप्लाई करते रहो. मतलब इट टेक्स नथिंग टू अप्लाई, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. बस एक मेल लिखना है. हाँ बस एक मेल लिखना है या बस एक मैसेज करना है, तो बस अप्लाई करते जाओ, क्या ही जा रहा है. वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. और फील्ड्स भी बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है कि क्या भरना है, तो स्ट्रक्चर्ड रखो थोड़ा सा. मतलब मेरे केस में तो ऐसा हो गया था कि मैंने मतलब एक बार कोई और मेल दे दिया था, तो उस वाले मेल पे मेरे को रेफरल आ चुका है, मेरे को OA का लिंक आ चुका है, और फिर मैंने बाद में देखा. तो ये सब होता है, जंक में चला जाता है कभी. हाँ एग्जैक्टली ये भी होता है. सो जंक वाला इज अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट हैपेंस, सो देखते रहना मेल. ओके, सो लाइक now I'll speak about something कि I've heard, I'm not sure कितना सही है, कि now the market is moving towards data science and machine learning. So SG opportunities people are saying कि are going down, right? So if I'm applying off campus, and generally क्या होता है off campus लोग बहुत सारे roles के लिए apply कर देते हैं जिसमें हो जाए, right? So do you guys have any opinions about कि किस role में ज़्यादा chances है off campus अगर मैं apply करूँ? I think still SD stands as a major thing for BTech people, because जो typically ML मतलब I can't answer this for all companies, हर companies का role अलग होता है, मतलब role listing अलग होती है, but typically कुछ companies में जिधर भी ML researcher है या ML scientist है, उधर ML role is not focused on implementation but it's focused more on slightly research area. So they prefer either BTech students with like जिनकी already research publications है etc, या फिर मास्टर्स के बाद PhD के बाद. सो स्टिल SD स्टैंड्स आउट एज अ वेरी गुड थिंग. एंड ऑल्सो एक और चीज़ इसमें कि SD डज नॉट मीन कि भाई डेव करवाएंगे तो मैं फ्रंट एंड बैक एंड ऐसा ये करवाएंगे. ये एक बहुत मेजर वो है कि कि जूनियर्स भी आके बोलते कि ये डेव नहीं करना है तो SD में क्यों अप्लाई करे वाला टाइप का. But so guys, Arushi Kumar breaking the stereotype of SD. मतलब like especially अभी जैसे मेरा खुद का जो इंटर्नशिप था, that was completely deep learning. Okay. मैंने dev तो बिल्कुल कोड नहीं लिखा है, पूरा पाइथन बेस्ड था, पूरा डीप लर्निंग था. एंड इवन अ लॉट ऑफ माई को-इंटर्न्स उनका भी देयर वाज ऐसा, मतलब प्रॉब्ली सबका ठीक है ऐसा नहीं था कि काफ़ी AI बेस्ड, बट दे हैड सम AI कॉम्पोनेंट और समथिंग. बिकॉज अभी इट्स लाइक SD कंपनीज आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स AI. उधर मैनेजर्स को भी दे आर मेकिंग देम डू ऑल AI कोर्सेज एंड ऑल, सो दैट दे हैव अ बेसिक आइडिया. सो लाइक
if I'm applying for SD, I need to know some AI for the interviews, or is just No, that is not a thing. That is not a requirement. But I meant to say this: कि there are a lot of people who say कि नहीं, I want to go towards ML AI and not towards dev side, and they typically feel कि मैं SD में क्यों apply करूँ. I think this is an answer to I mean, I think the main thing is be confident on whatever your profile is. Be confident on your projects. Be confident in maybe DSA or whatever the company asks. Because मतलब वही है, तुम लोग सब चीज़ें करते जाओगे फिर एक चीज़ ढंग से नहीं कर पाओगे. मतलब ऐसा हो जाता है यूजुअली. Jack of all, master of none. एग्जैक्टली. एंड कमिंग टू अप्लाइंग, मतलब यार अप्लाई तो सब जगह कर दो मेरे हिसाब से. क्योंकि मतलब मैंने भी वही 3 अलग अलग फील्ड्स में इंटर्न करी. एक एनालिस्ट हो गया, एक डेव कर लिया, और फिर और एक डेटा साइंस वाला कर लिया. तो सो डोंट बी वेरी. rank them. So you're telling people not to do this? नो आई एम सेइंग कि यार मतलब प्रिपरेशन में हाँ. डोंट बी वेरी लाइक अपने प्रोफाइल पे वो करो. नहीं, a lot of people, for example, I'm a second year, right? I'm not sure कि मुझे बनना क्या है. मैं तो सोच के आया था मुझे पायलट बनना है. एग्जैक्टली. हाँ, ये तो यार फर्स्ट मतलब मेरे तो यार 2 साल इसी में निकल गए कि मैं क्या करूँ. ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर तक आई वाज समथिंग इनटू समथिंग डिफरेंट. नाउ आई एम इनटू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. Okay. सो अगेन मतलब एक दिन आएगा जिसमें तुम लोग को समझेगा यार ठीक है मेरे को यही चीज़ करनी है. अच्छा. तब तक यार तुम लोग ढूंढते रहो. मतलब फर्स्ट Keep सेकंड ईयर में तो exploring. आराम से मतलब एक्सप्लोर करो. उस पॉइंट तक जो प्रोफाइल बन गई उसमें अप्लाई कर दो. हाँ मतलब Okay. यार अप्लाई करने It's से a experience only. Exactly. तो क्या ही है, दिक्कत क्या है. एंड मोस्टली टॉप कंपनीज में यू डोंट गेट टू नो एंड यू डोंट हैव अ से कि आप कहाँ प्लेस, कहाँ कौन सी टीम में अच्छा. जाओगे एंड कौन से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. हम्म. तो जो भी वो देंगे, फ्रंट एंड बैक एंड AI ML जो देंगे वो करना पड़ेगा. बट जो छोटी कंपनीज है या स्टार्टअप्स है बेसिकली, उनमें यू कैन ऑफ कोर्स फिल्टर आउट कि तुमको एज अ बैक एंड डेवलपर या ML रिसर्चर या AI रिसर्चर जो जाना हो, तो वो ऑफ कोर्स आप स्टार्टअप्स में कर सकते हो. बट बी प्रिपेयर्ड, मतलब एक्सप्लोर करते रहो. Okay. So like tech हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया. Tell us something up more about non-tech की. Non-tech के लिए लोग कैसे प्रिपेयर करें for off नॉन टेक campus? के लिए लाइक ऑफ कैंपस देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बी ऑनेस्ट. देयर आर रेफरल प्रोग्राम्स. सो यार अगर किसी तुम लोग का कोई रिलेटिव या कोई है मतलब जो काम करता है उस कंपनी में, तो यू कैन ट्राई गेटिंग अ रेफरल. बट मतलब यूजुअली फॉर बीटेक पीपल दे आर नॉट वेरी like open minded for अच्छा. non-tech because they prefer मैनेजमेंट वाले लोग को. exactly either commerce colleges or फिर MBAs. हम्म. So off campus there are lot of opportunities but there are still मतलब रहता है यार. मतलब McKinsey BCG सब पोर्टल पे खुलता ही है इंटर्न्स. अब मेरे को खुद नहीं पता यार कि कितने लोग लेते हैं उसमें से. तो ट्राई अप्लाइंग ऑब्वियसली. मतलब अप्लाई करने में क्या जा रहा है एग्जैक्टली. दिस इज द गोल्डन रूल कि यार अप्लाई करते रहो. हो यार तो ठीक है, नहीं तो लगे रहना है बस. हाँ. मुझे तो अभी भी रिजेक्शन मेल्स आते हैं जो मैंने लास्ट ईयर या 6 महीने पहले अप्लाई किए थे. तो रिप्लाई करता है, अरे मेरी लग गई भाई. ठीक है. सो नाउ दिस वन क्वेश्चन वेयर आई वांट टू आस्क कि IIT गुवाहाटी की क्या रेपुटेशन है. लाइक जब तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, लाइक यू आर नो वन टू देम, तुम जानते नहीं उन्हें, वो तुम्हें बस ऐसे जानते हैं कि तुम IIT गुवाहाटी से हो, राइट? सो एट दैट पॉइंट हमारा कॉलेज कितनी हेल्प करता है हमारी? लाइक तुम्हें क्या लगता है कितनी हेल्प करता है? लाइक आउटसाइड तो आउटसाइड पर्सपेक्टिव से कि कोई इंटरव्यूअर है हु डज नॉट हैव एक्सपीरियंस, वो कभी नॉन IIT से है इंटरव्यूअर हिमसेल्फ, तो ऑफ कोर्स बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. मतलब ही विल प्लेस यू अबव ऑल द पीपल ही हैज इंटरव्यूड अंटिल नाउ. मतलब नॉन IIT से कंपेयर करें तो वो चीज़ काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है कि तुम एक अच्छा इंप्रेशन दे सकते हो. एंड जस्ट IIT गुवाहाटी एड्स अप टू इट. एंड ऑफ कोर्स मतलब जैसे ड्यूरिंग इंटर्नशिप ऑल्सो जब मेरे कलीग्स पूछते थे कि विच कॉलेज आर यू फ्रॉम, तो जब भी IIT गुवाहाटी बोलता था तो देवर मतलब दे हैड अ स्पार्क इन आईज. हवा तो बन जाती है. हाँ. सो लाइक फॉर एग्जांपल आई एम समवन जिसने लाइक आई एम अ थर्ड ईयर, राइट? माय इंटर्न सीजन इज आल्सो अबाउट टू एंड एंड मैंने अभी तक DSA भी ठीक से नहीं किया है. मैं CNA में था बट मैंने नॉन टेक ठीक से किया नहीं, राइट? सबको थोड़ी ना आता है, कुछ लोग ही करते हैं अच्छे से. सो अभी मैं क्या करूँ? लाइक शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग या फिर शुड आई स्टार्ट अप्लाइंग? मैं क्या किस रोल की तरफ जाऊँ? आई थिंक साइमल्टेनियस प्रोसेस है कि अप्लाइंग में तुम्हें इतना मतलब वही है कि बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर अप्लाइंग का. तुम्हारी CV बनी हुई है, तुम्हारा क्या भरना है, कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड ऑल होते हैं. तो आई डोंट थिंक कि इट्स अ थिंग कि डू आई अप्लाई और डू आई दिस. यू डू थिंक साइमल्टेनियसली, यू कीप प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड, अप्लाई करते रहो. लाइक अनस्टॉप पे कुछ ना कुछ इतने हैकेथॉन्स वगैरह चलते रहते हैं.
फिर अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स टाइप भी a lot of ऐसे companies they have some or the other program because they need it for their वो I don't know what you exactly call it, I think CSR or something. मतलब basically they need it कि to show that they are doing social work. Okay. तो इनफैक्ट जैसे कुछ कंपनीज का वो होता है लाइक टाई अप, जैसे गूगल का कोर्सेरा के साथ एक साइबर सेक कोर्स दे वर गिविंग. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी यूजफुल. ओके. कैंपस एम्बेसडर बनना कितना यूजफुल होता है? यार दिस इज नो एक्सपीरियंस. बहुत लोग बन के सीवी में डालते हैं. नहीं यार, मतलब फॉर अगर तुम लोग आईआईटी में हो तो आई डोंट थिंक इट इज मैटर, नॉट नेसेसरी एट ऑल. आई आल्सो नॉट सीन समबडी कि जिसको बहुत फायदा हुआ है कैंपस एम्बेसडर वगैरह प्रोग्राम से, ऐसा कुछ मतलब या इंटर्नशिप लगा उस चीज से. मैक्स केस तुम लोगों को गुडीज मिल जाएंगे कुछ, बस इतना ही होता है उसके. So now this question specifically to you, Aditya. So because you are from chemical and not many companies are allowing a chemical to sit for their OAs, right? Yeah. I'm talking about on campus, right? So there might have been a time when like you might have felt कि अभी कैसे होगा, because you were applying at a lot of places as you told, but how did you deal with that thing कि जहाँ पे तुम्हें कई लोग give up कर देते हैं? How did you rise from that? मतलब again keep going is the formula I guess. मतलब मैंने भी खुद काफ़ी इंटरव्यूज ऑन कैंपस दी थी, नहीं लगी मतलब. तो एंड अगेन बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रोफाइल, योर प्रोजेक्ट्स, योर एक्सपीरियंस, जो मतलब ऑन योर स्किल्स बेसिकली. अगर तुम लोग को आता है तो इट इज़ मतलब ये डर नहीं आना चाहिए कि यार तुम लोग की कब लगेगी, कैसे लगेगी, लग जाएगी, इज़ द पॉइंट. हाँ, तो इट इज़ नॉट लाइक द एंड ऑफ द थिंग. मतलब वैसे भी प्लेसमेंट्स में इट डजेंट, ये नहीं देखते कि यार तुम्हारी इंटर्नशिप स्टाइपेंड क्या थी, ये बस ये देखते कि यार इंटर्नशिप में क्या करा था. सो दैट शुड बी मोर लाइक ऑन योर एजेंडा कि यार. So like should people consider while taking, for example, I am getting an internship but it's not a paid internship. So what do you suggest? मुझे वो internship लेनी चाहिए या नहीं? Experience count करता ज़्यादा, या फिर अगर stipend नहीं मिल रहा तो मैं काम क्यों करूँ उसके लिए? I mean it's a trade off I guess. I mean like yeah, it is based on the company. अगर बहुत अच्छी कंपनी है and they are like, it is usually this will happen for startups. Okay. तो startups में if there is like a lot of, it's a very very good idea and then investors ने pitch करा हुआ है, तो usually there is a stipend. But unpaid में you can try if you like the work, if you think you're learning, then you can go like कंटिन्यू इट, नहीं तो छोड़ दो. मतलब मेरे हिसाब से वहाँ डिसाइड करना पड़ेगा if एक्सपीरियंस ज़्यादा वैल्यूएबल है या फिर मेरा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है. प्रोजेक्ट देख सकते हो कि व्हाट प्रोजेक्ट दे आर ऑफरिंग. कभी इफ इट्स अ गुड प्रोजेक्ट कि यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एंड ऑफ कोर्स इट एनहांसेस योर स्किल्स एंड एवरीथिंग, देन यू कैन डू इट. जस्ट डोंट सेट कि आई वांट अ पेड इंटर्नशिप ही चाहिए या सिर्फ पैसा ही चाहिए. प्रोफाइल में कंट्रीब्यूशन उसका बहुत ज़्यादा हो. नाइस. सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट. सो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग दैट वी माइट हैव स्किप्ड, सो यू कैन ऐड. Is there something that you think? आई थिंक कि ऑफ कैंपस के लिए इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है. यू अप्लाई 2 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने तक यू कैन जस्ट अप्लाई. तो जस्ट कीप गोइंग आई वुड से. डोंट गेट टायर्ड इनफ और डिफरेंट सब जगह एक्सप्लोर करो. गूगल पूरा छान मारो, लिंक्डइन पूरा छान मारो. तो जस्ट दिस. So we have quite covered the informative part of this podcast. So let's move towards your experience part कि तुम्हारी internship कैसी रही. So if you'd like to share कि तुम्हारा procedure कैसा था, and after that when you went there, how was the intern experience? Starting with you, Arushi. मतलब internship procedure तो at least after एक बार like internship procedure तो वही कि I got a mail and like after that within 2 weeks or so I had 2 interviews at दोनों 1 week के gap पे, and then फिर 1 week later they gave the results. Okay, if you could tell us more about the interviews, कैसा experience था? Interviews like pure DSA 45 minutes. Okay. 2 questions and अभी Google में the scene is कि they don't typically differentiate between off campus and on campus as such. Okay. Like once you're in the, hopefully PVA नहीं आया अभी तक. तो but like pure DSA CV पे नहीं जाते हैं वो. But again the interviewer has seen your CV because my second interviewer, she knew I was from data science branch. Okay. तो like 45 minutes, 2 DSA questions. Typically 2 DSA questions, they're not like 2 independent questions but they're like मतलब 1 question और question पे ही थोड़ा constraints change कर दिए, follow up के लिए थोड़ा बहुत और change कर दिया so that it is a harder version
of the first question. Mhm. And you have to कोड इट डाउन. कोई आईडी नहीं है गूगल डॉक टाइप का जिस पे कुछ इंडेंटेशन नहीं है और कोई ऑटो कंप्लीट नहीं है, तुम उस पर कोड लिख रहे हो. एंड साथ साथ यू आर ऑल्सो टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर, यू आर एक्सप्लेनिंग देम योर अप्रोच. पहले इनिशियल नहीं चमक रहा है कि क्या करना है, उसमें भी यू हैव टू कीप टॉकिंग थोड़ा बहुत कि वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट. अगेन दे आर नॉट देयर टू ऐसे कि इट्स नॉट लाइक अ वाइवा और समथिंग कि भाई बताओ जल्दी, will this. They are there to guide you, like they'll give you points, they'll help you to go through the matlab to navigate through the problem ka solution. So that is how the interview experience majorly look like. Great. And फिर after the results तो the process is same as on or off campus ki later on last में they'll send the offer letter Okay. months later and all. Okay. What about you, Aditya? यार मेरा तो ऐसा था कि अगेन मैं बताया था, सो जुलाई के आसपास देयर वाज अ हैकेथॉन एंड देन इट वाज अ 24-hour हैकेथॉन ओनली. सो उसी में हम लोग ने लाइक रात दिन ये कर दिया था. एंड What was it about, like BPS? मतलब इट वाज बेसिकली लाइक बिजनेस प्लस डेटा साइंस प्रॉब्लम Okay. वेयर वी हैड टू सॉल्व, लाइक एक इंडस्ट्री पिक करनी थी और उसमें कुछ ना कुछ दे हैड गिवन सम थिंग्स टू डू, उसमें से कुछ करके एंड देन यू हैव टू like give a final solution. Okay. So उसमें भी like मतलब अच्छा हो गया You कि can talk in detail if you want to add something, like कुछ डिटेल में बोलना है तुम्हें. मतलब बेसिकली क्या था कि सुबह एक राउंड था पहले कि आइडिया के बारे में था. देन इट वाज कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू आर थिंकिंग ऑफ. देन मतलब ऐसे देयर वर लाइक बेसिकली 6 or 7 राउंड्स जिसमें दे हैड डिफरेंट मतलब ऑल ऑफ देम वर इवैल्यूएटेड. तो अलग अलग पॉइंट्स थे उसके. एवरीथिंग अबाउट दी मतलब कोड, बाद में कोड सबमिशन था. देन देयर वाज फाइनल लाइक बिजनेस इम्पैक्ट एंड ऑल, ये सब का था. दिस वाज ए फुल 24-hour थिंग. तो वी पहले उसके बाद वी हैड टू प्रेजेंट इट गोइंग बैंगलोर में जाके उनके ऑफिस में. सो उसमें प्रेजेंट किया एंड देन दे डिक्लेयर्ड कि वी वर द सेकंड. एंड देन उसके बाद सितंबर इश में मतलब दे आर लाइक कि वी आर ऑल्सो हैविंग इंटर्नशिप ओपनिंग्स, सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई देन ऐसा करो. देन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू में तो इट वाज मेजरली ऑन लाइक व्हाट वी डिड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. रिटेल इंडस्ट्री पे था, मतलब अलग अलग चीज़ें करी थी. तो उस पर काफ़ी टाइम चला गया इंटरव्यू में. देन सम पाइथन में ऊप्स, मतलब पाइथन, देन ML बेसिक्स थियरी, मतलब इतना पूछा. मतलब वही नॉट वेरी ग्रिलिंग बट अगेन हैकेथॉन था इसीलिए आई गेस ऐसा था हमारा. सो दिस वाज द प्रोसीजर. देन फाइनली इंटर्न में बैंगलोर में मजे करे. Crazy, nice. So like what happens is, I'll come to you. हाँ. So what happens is generally hackathons, बहुत लोग they don't participate because उन्हें लगता है बहुत hopeless हो जाते हैं यार, इतने सारे लोग participate करेंगे, मेरा solution ही क्यों accept होगा. And most of the times उनके PS भी बहुत tough रहते हैं. इसमें computer vision के PS हो गए, RAG के PS हो गए. तो most people are not aware of these things. तो ऐसे में apply मतलब try करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ChatGPT सब लोग यूज़ कर रहे हैं. कर लो यार ट्राई. मतलब इफ़ यू आर अगेन थोड़ा ट्राई कर लो एटलीस्ट. इट इज़ ए नेवर एंडिंग थिंग कि यार नहीं करना है. बट यू कैन ट्राई अ बिट. देन इफ़ यू आर थिंकिंग यार मतलब हो सकता है कुछ एंड देन स्कोर आ जाए अच्छा, मतलब डिपेंड्स. GPT तो यूज़ करते ही है लोग, बट यू हैव टू आफ्टर दैट अबव दैट यू हैव टू लाइक पॉलिश द सोल्यूशन इन अ वे दैट दे रिकग्नाइज कि इट इज़ लाइक वेरी कोहेरेंट टू दी. लाइक मेरे केस में ये था कि इट वाज ए बिजनेस, इट वाज एन इंडस्ट्री दैट ट्रेडेंस इटसेल्फ इज वर्किंग ऑन. सो उसके हिसाब से कुछ वी हैड टू टेलर इट टू. तो ये सब देख के करा था एंड देन दे लाइक्ड इट बिकॉज इट वाज द मोस्ट यू नो वर्कड इंडस्ट्री इन देयर कंपनी. So like how much does the team matter in a hackathon? Like मैटर तो करती है. मतलब ट्राई टू हैव ए डिज़ाइनर, ट्राई टू हैव ए PPT लाइक जिसने They also want diversity. हाँ एग्जैक्टली. okay. मतलब नॉट द ओनली थिंग आई गेस, बट मतलब इट इज़ ट्राई टू फाइंड एडवांटेजेस जितना कर सकते हो. Okay, I got it. Adi, हाँ, मेरा भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेम था. OA दिया, DSA क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर नेटवर्क्स. how did you approach? Through LinkedIn? हाँ, थ्रू लिंक्डइन में आया था. अच्छा. एंड देन OA सिमिलर जैसे ऑन कैंपसेस होते हैं वैसे ही था.
डिफरेंट सेट ऑफ साथ क्वेश्चन में भी था. हाँ, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस मेरे लिए सर सिस्को के लिए हाँ. दोनों प्रोसेस सेम थी, इंटरव्यूज़ में भी एंड ओएस में भी, तो ऑल ओवर इंडिया एक ही हुआ था सब कुछ, तो दिस वाज सेम था पूरा. So how was your interviews में like? मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरे 3 इंटरव्यूज़ थे. तो फर्स्ट इंटरव्यू वाज DSA, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, CN, OOPS, OS वगैरह, क्योंकि बेसिकली सिस्को इज़ अ नेटवर्किंग कंपनी, तो इसलिए ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी. सेकंड वाज चिलर CV बेस्ड राउंड, रेज्यूम प्रोजेक्ट बेस्ड राउंड्स, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया मैंने एंड डू आई अलाइन विद द कंपनी एज वेल. एंड थर्ड वाज चिल HR राउंड की वेयर डू यू वांट टू कम टू इंटर्न एंड वो सब नॉर्मल प्रोसेस. तो यही सब सेम एक्सपीरियंसेस थे. Nice. एंड वन थिंग जो आई थिंक कि जिसकी वजह से शायद इंटर्न आई गॉट कन्वर्टेड इन सिस्को वाज कि आई इनिशियली जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था तो आई वाज नॉट थिंकिंग आउट लाउड. मैं प्रोसेस एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा था, मतलब पहले ट्राई कर रहा था कि सॉल्व करूँ एंड देन एक्सप्लेन करूँ. Okay. बट आई गेस द बेटर अप्रोच इज टू थिंक आउट लाउड ड्यूरिंग द Okay. As you also said कि साइलेंट Right. नहीं बैठना है, बोलते रहना है. What हाँ. are you thinking? अपनी Right. approach बताओ. ड्राइव द इंटरव्यू बाय योरसेल्फ एंड नॉट द इंटरव्यूअर ड्राइव द इंटरव्यू. Okay. वो So इम्पोर्टेंट है. yeah, nice. Crazy experiences guys. So a lot of people from second year they also feel कि second year में भी कुछ लोग internship कर रहे हैं. So और मोस्टली वो ऑफ कैंपस ही होती है, ऑन कैंपस तो लाइक गर्ल्स के लिए कुछ आती है कंपनीज, बट ऐसे नहीं आती. सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इसकी सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स करनी चाहिए? आई थिंक यू हैव टू नो कि मतलब डिपेंड्स कि पहले वही कंपनी कौन सी है. लाइक मेरा तो DSA प्रेप इतना अच्छा नहीं था सेकेंड ईयर में. दिस वाज समथिंग अ मिस्टेक आई डिड कि थर्ड सेम से आई शुड हैव स्टार्टेड DSA प्रेप. आई डिड नॉट डू दैट बिकॉज वही फोर्थ सेम के स्टार्ट में होती है. बट इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी कंपनी है एंड टाइम कितना जा रहा है एंड इफ़ उसका लेट्स से PIO कन्वर्जन का सीन कैसा है. क्योंकि इमिजिएटली आफ्टर दैट यू हैव इंटर्न सीजन. तुम्हें पता है तुम्हें इंटर्न सीजन में बैठना है, तो फिर तुम वो समर प्रिपेयर करोगे कि इंटर्न करोगे. एंड मोर देन दैट कि ऑल्सो तुम्हारा उस टाइम प्रेप कैसा है. एंड PIO इज द प्री इंटर्नशिप ऑफर, लाइक PPO प्री प्लेसमेंट होता है. You can continue. तो आई थिंक जस्ट मेजरली दैट कि कितना टाइम तुम लाइक इफ़ यू एनीवेज वांट टू कंटिन्यू इन दैट कंपनी लेटर ऑन, तुम्हें PIO चाहिए एंड इफ़ यू वर्क वेल यू वुड गेट अ PIO राइट. तो देन यू गो फॉर इट. इफ़ नॉट, इफ़ यू एनीवेज वांट टू सिट इन द इंटर्न सीजन और तुम्हें लग रहा है कि अच्छे से DSA नहीं हुआ है या जो भी प्रेप करना था तो मैं लेट्स से प्रोबेबिलिटी है वो भी नहीं हुआ है अच्छे से, देन इंस्टेड प्रेप करो. Okay. ट्रेड ऑफ है प्रेप या फिर एक्सपीरियंस. Exactly. There are like pros and cons, I guess. Like pros ये होते हैं like if you're working or applying to a startup. तो pros ये है कि यार मतलब fast paced environment होता है. You get to learn a lot. If it is a good startup again, मतलब good अच्छा काम है उसके बाद. फिर but वही है cons में you like ये तो एक con है कि यार ऐसे कम मिलते हैं opportunities, इतने नहीं होते. And again मतलब between teams इतना like कोहेरेंसी नहीं होती है. लेट्स से डेव टीम और प्रोडक्ट टीम में मतलब इट इज़ वेरी फास्ट पेस. तो एक दिन तुम लोगों को कुछ बोल देंगे, दूसरे दिन कुछ और बोल देंगे, तीसरे दिन कुछ और बोल देंगे. तो मतलब इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से. मतलब यू शुड ट्राई एटलीस्ट लाइक हैविंग ट्राइंग टू वर्क इन अ स्टार्टअप, बिकॉज आई थिंक मेरे केस में तो दैट वाज द 1 month in which I learned like the most, I guess. तो Okay, you did an internship in second year. yeah, third year में वैसे तो मतलब second Okay. year में किया था, but third year में is one like is So what you were having 2 internships simultaneously. नहीं. So basically second year में किया था, then third में किया था, and then Okay. फिर अभी third के end में. अच्छा अभी क्या? हाँ. Fine. So like कई सारी internships जो तुमने रिमोट थी वो. So remote internships क्या प्रेफर करनी चाहिए? बिकॉज यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अलॉन्ग, क्योंकि ये डिस्कस राइट कि ट्रेड ऑफ है कि मैं वो टाइम प्रेपरेशन में देना चाहता हूँ या फिर एक्सपीरियंस गैदर करने में देना चाहता हूँ. Actually one of my मतलब मेरा रिमोट नहीं था, मेरा like on site बैंगलोर में था. Okay. तो that is where like I got to negotiate a good stipend as well. मतलब Okay. तो वो अलग है. बट there are some मतलब रिमोट के लिए यार डिपेंड्स लाइक फर्स्टली गो ऑन दी कंपनी के मतलब को फाउंडर्स की कैसी टीम है, लाइक आर दे एक्चुअली हैव वर्कड मोस्टली लाइक देयर आर सम जिसने इंडस्ट्री में काम करके फिर देयर लाइक कि नहीं खुद का कुछ बनाना है. You can trust mostly. So with remote internships I meant कि LinkedIn पे you might be seeing बहुत सारी internships होती है कि तुम्हें 5,000 देंगे 10,000 देंगे. So people often opt for it कि मुझे एक experience भी मिल जाएगा, ज़्यादा काम भी नहीं होगा and I'll get an income as well. Okay. And I can definitely prepare भी, उसमें बहुत ज़्यादा working hour भी नहीं होता है. So should we opt for that or not?
दैट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ना, तुम लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर. इट इज़ कर सकते हो बट मतलब डोंट बी वेरी वेरी हेल बेंट ऑन की मतलब नहीं लगी या लगी तो इट इज़ ओके, लग गया तो कर लो थोड़ा, अगर हो रहा है तो कर लो, नहीं तो मत करो, इतना सोचो मत. आई I थिंक guess अगर it- ड्यूरिंग सेमेस्टर है लाइक स्पेशली काफ़ी बार ड्यूरिंग सेमेस्टर एटलीस्ट डेव की तो बहुत आती है रिमोट, बट देन इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कितना टाइम है तुम्हारे पास. लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हमारे कॉलेज में भी दे डू अ लॉट ऑफ रिमोट इंटर्न असाइनमेंट, तो इट्स लाइक उनका टिपिकली टाइम जाता है कि अकेड्स एंड देन फिर रिमोट इंटर्नशिप्स, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ऐसे क्लब्स एंड ऑल. तो इट डिपेंड्स ऑन कि आफ्टर तुम्हारा प्रायोरिटी वाली चीज़ें टिक ऑफ हो रही है उसके बाद तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है, तो तुम अकॉर्डिंगली जिधर ज़्यादा मज़ा आ रहा है यू प्रायोरिटाइज. ये मिस्टेक मैंने करा था, मतलब फोर्थ सेम में वही मैंने सेम चलते वक्त ऑन साइट अपने मतलब कैंपस में ही था. सो अगेन मतलब मैं क्लासेस स्किप करके जा रहा हूँ, उधर बैठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, देन फिर एग्जाम्स में समझ गया कि नहीं करना चाहिए था. बट अगेन मतलब CVP इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आ गया एंड इट वाज अ डिफरेंट, मतलब वही कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस तो अच्छा लगा. मतलब ट्रेड ऑफ है ही बट बी अवेयर ऑफ व्हाटएवर यू डूइंग. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंटर्न प्रायोरिटीज. सीजन पे तुम इंटर्न करो, ऐसे इंटर्न पगलू होने की जरूरत नहीं है. हाँ That's मतलब what you're saying, right? मतलब Fine. फर्स्ट प्रायोरिटी DSA रखो, DSA हाँ. एंड देन इंटर्न सीजन, क्योंकि पता है इवेंचुअली यू हैव टू सिट इन इंटर्न सीजन और फिर प्लेसमेंट सीजन में बैठने है, तो एक अच्छा बेस बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा है. एंड एडिंग टू दैट इंटर्न सीजन में मोस्ट पीपल जो बैठ रहे हैं किसी के पास भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट नहीं नहीं है, होता है. तो सब लोग सेम ही प्लेइंग ग्राउंड पे है. एंड हैविंग अ लेट्स से मतलब an internship is not going to give you that much of an edge. That is what I feel. This is a bit different in non-tech. मतलब non-tech में you have to make your CV stand out because CV shortlisting होती है. So non-tech के लिए it is preferred to have at least one internship experience. Okay. ताकि मतलब you stand out and your CV gets actually shortlisted. एक से ज़्यादा है तो बेटर ही है. हाँ obviously. एंड जिसको ऐसा है करने का कि हमें को इंटर्न करना ही है तो ऑफकोर्स विंटर्स में कर लो, दिसंबर्स में, या फिर ऑफ टाइम पे कि जब किसी को प्रिपेयर नहीं करना एकेडमिक्स इंटर्न्स के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टार्टिंग उस टाइम पे. तो कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. हाँ राइट. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू समराइज कि हमने बहुत सारी बातें की. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ एक्सप्लोर करना चाहिए, राइट. तुम्हें पहले ये डिसाइड करना चाहिए तुम्हें करना क्या है. पायलट तो नहीं बनना है अभी यहाँ है तो. So explore karo, get into clubs as you guys said. So that's one thing. Then the other thing is the go-to social media app is LinkedIn obviously. You need to expand your networking. Seniors से बात करो and थोड़ा aware रहो, attentive रहो, और unstop as well अगर hackathons में तुम interested हो, क्योंकि that is also एक माध्यम है वो भी, right. Then networking obviously. Then you have to be consistent. All of you mentioned कि बहुत बार रिजेक्शन आते हैं या फिर बहुत ज़्यादातर रिजेक्शन ही आते हैं और एक सिलेक्शन आता है जिसमें आप चले जाते हो. सो उससे डील करना आना चाहिए, क्योंकि IIT में जो लोग एक तो आ रहे हैं वो ज़्यादा रिजेक्शन झेले नहीं होते हैं. अगर मतलब लड़कियों को हटा दें, लाइक लड़कियों से रिजेक्शन हटा दें, तो दैट्स वाई रिजेक्शन डील करना आना चाहिए. और यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, लगे रहना है एज यू ऑल्सो सेड कि लाइक इवन मेड बी ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों जगह रिजेक्शंस होंगे, तो लगे रहना है. And at the last, best of luck guys if you are applying for off-campus internships, and thank you very much for being here. Thank you very much for giving us your time and for your valuable inputs. So I hope this was quite informative and helpful for you guys, and if you want to watch more podcasts like these, stay tuned, and thank you very much.